here and I'm teaching you maths of NCERT class 8. So once again I'm here with another question of exercise 6.4. That is question number 8. So let's understand what the question number 8 says here. Here it is telling a gardener has 1000 plants. You want to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है, ठीक है। वो इन प्लांट्स को इस तरह से लगाना चाहते हैं कि जितने रोज हो उतने कॉलम हो जाए, ओके। इसके लिए he needs more plants because you know find the minimum number of plants he needs for more this. तो इस मींस इस तरह से रोज और कॉलम को सेम करने के लिए उन्हें और कितने प्लांट्स चाहिए, गॉट इट। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक। सो लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1000, ओके। सो 1000 के हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, नो पेयरिंग, ओके। लुक हियर, ओके। So look here, 3 3s are 9, 3 3s are 9, okay। 10 minus 9 1. Now note down this pair as it is. इस पेयर को हम as it is यहाँ पे नोट डाउन करते हैं and 3 को once more 1 3 से हम इसे ऐड करते हैं, 3 3 6। एक और 3 से हमने ऐड किया, कितने हो गए 6। Now अब हम 6 यहाँ पे रिटर्न करते हैं 1, क्योंकि 61 बन जा 61। You know why? क्योंकि अगर हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं 2 then 62 2 जा more than 100 से ज्यादा आ जाएगा। That's why we will write in here 61 1 जा, okay। Now look here, now 10 minus 1 9, 9 minus 6 what will be, this is 9, 9 minus 6 is 39, got it now? Now look here, here telling that here just you see we have got a remainder 39 here, okay। It means it is not a perfect square, ये perfect square नहीं है, हमें और प्लांट चाहिए जिससे रोज और कॉलम हमारे इक्वल हो जाए। We see here the square of 31 की स्क्वायर is less than what, 1000 से कम है ना, because 1000 ज्यादा, that's why we are getting here remainder 39. So you know why? So in order to make the next perfect square, हम next perfect square बनाएंगे। The next perfect square will be what? Square is 32 and it is equal to 32 कब आप करेंगे, when you do it 2 2 is 4, 3 2 is 6, 3 2 is 6, 6 2 12, okay। 2 2 is 4, 3 2 is 6, 3 2 is 6, 3 2 is 6, 6 6 12 2 31, 3 3 is 9 1 10, 1024 we get here 1024 means हमें परफेक्ट बनाने के लिए जितने रोज और जितने कॉलम है उतने बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, 1024 प्लांट्स चाहिए। Therefore अब हम क्या करेंगे, 1024 में से 1000 को माइनस करेंगे, we get here 24। कितना है हमारा 24। It means if we get, अगर गार्डनर को 24 और प्लांट्स मिल जाते हैं तो वो रोज जितने रोज उतने कॉलम्स को अरेंज कर सकते हैं, गेट इट ना। जितने रोज होंगे उतने कॉलम्स होंगे, इस तरह से वो प्लांट्स को लगा सकते हैं, ओके। दैट्स व्हाई ही टेलिंग फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। देयरफॉर राइट डाउन हियर, यहाँ पे रिटर्न करते हैं, सॉरी, देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ, देयरफॉर सिंपली राइट डाउन, देयरफॉर ही नीड्स हाउ मेनी प्लांट्स, ही नीड्स 24 more plants। Find the minimum number of plants he needs. Therefore, write down this. He needs 24 more plants. उन्हें 24 और plants चाहिए। Got it? Clear है? Okay. I think there is no any problem. Simply हम इसमें square root फाइंड आउट करने हैं। Remainder we are getting because it is not perfect square. फिर हम next perfect square निकालते हैं, 1024 we get। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर में से 1000 को माइनस करते हैं, वी गेट 24। इट मींस अगर हमारे पास 24 और प्लांट्स है, गार्डनर के पास अगर 24 और प्लांट्स हो जाते हैं तो वो रोज और कॉलम को इक्वल कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इस चैप्टर को मींस इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी हियर व्हाट द क्वेश्चन नंबर 9 सेज।
in a school. Question number 9. There are 500 children in a school. एक स्कूल में 500 children है. Okay? For a PT drill, PT drill के लिए they have to stand in such a way, in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. Okay. How many children would be left out in this arrangement? How many children would be left out in this arrangement? Look here. What's the question number 9 saying here? There are 500 children, okay, in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? Means there are 500 children in a school. किसी स्कूल में 500 children हैं और इन सारे बच्चों को चिल्ड्रन को PT ड्रिल में स्टैंड करवाने हैं. तो इस तरह से स्टैंड करवाना चाहते हैं कि रोज जितने रोज होंगे उतने कॉलम हो, जितने कतारें बनेंगे रोज होंगे उतने कॉलम होने चाहिए. ओके. इसके लिए फॉर दिस हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट? तो कितने बच्चे इस अरेंजमेंट से बाहर होंगे? ओके. 500 है, 500 में से कितने बच्चे को बाहर रखना पड़ेगा ऐसे अरेंज करने के लिए, रोज और कॉलम को इक्वल करने के लिए. तो फॉर दिस वंस अगेन वी विल डू स्क्वायर रूट. हम फिर से क्या करेंगे? स्क्वायर रूट. वेरी गुड. लुक हियर. सो वंस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 500. हम 500 के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. ओके. लुक हियर. Tearing. Now look. 2 2 जा 4. 5 minus 4 1. Once again इस जीरो को एज इट इज पेयर में नोट डाउन करेंगे. देन वंस अगेन 2 को 2 से प्लस करेंगे. 2 2 4. What will you write down here to get 100 or less than 100? Nearby 100. So just look here. 42 2 जा 84. 43 3 जा more than 100. 100 से ज्यादा आ जाता है. That's why we will do here by 2. 42 2 जा 2 2 जा 4. 4 2 जा 8. 84. 10 minus 4 6. 9 minus 8 1. 16. Means when we find this, if after finding the square root we found here that 16 is remaining here. 16 हमारे क्या है? रिमाइंडर. इट मीन्स अगर हम 16 चिल्ड्रन को बाहर कर देते हैं तो इट कैन बी अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम. सेम रोज और कॉलम में हम अरेंज कर सकते हैं. मीन्स स्कूल वाले कर सकते हैं पीटी ड्रिल के लिए. सो हियर हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट? कितने बच्चे अरेंजमेंट से बाहर होंगे? ऑब्वियसली 16 रिमाइंडर है. इट मीन्स 16 चिल्ड्रन बाहर होंगे. देयरफॉर 16 children would be left out in this arrangement. Got it? I hope you would have understood very clearly. There is no any problem. बहुत easy है, बहुत simple है. Just you can do it. Okay? So I'll meet you once again in next video.